So good morning once again to all of you. Right? We have already completed chapter number one. The only thing which is standing is we have to discuss some questions along with case studies, short questions, long questions, which you have to do in your register also, please. Okay, and in case of any confusion, you can call me at any time. See, this is question number one. Question number one. Answers are also mentioned, so it's very good. Number one question, what they are saying, which of the following does not characterize business activity? You have answer also mentioned, but you should use your mind. You should use your mind, but you're right. Aji, which of the following does not characterize business activity? There are four options. Production of goods and services, yes. Positive दिख रहा है. Presence of risk, yes. Sale of exchange, sale or exchange of goods and services, yes. What about salary? सर ये तो हमारा एक्सपेंस है. अकाउंट्स की हमने पढ़ा, वहां पर भी इसे हम एक्सपेंस के कैटेगरी में दिखाते हैं. It's not, this is not a special feature of business activity, right? So this is the right answer. What about second one? Which one of the broad categories of industry covers oil refinery and sugar mills? Primary industry, secondary industry, tertiary, or none of them? You know, the answer is already mentioned. The answer is secondary. Just after 5 minutes, we will discuss case studies today. As our main objective of today's class is to discuss case studies. Right, bachcho? Chaliye, next. Next question is, which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade? Which of the following? इसको आप auxiliaries to trade नहीं कह सकते. Yes. See, we have how many options? Four options again. Right? Mining, insurance, warehousing, transport. And as you know, we have already studied. इतना तो आपके माइंड में 100% है कि इंश्योरेंस ऑक्सिलरी टू ट्रेड का पार्ट है, वेयर हाउसिंग की वजह से भी सपोर्ट मिलता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से भी सपोर्ट मिलता है, राइट. व्हाट अबाउट माइनिंग? नहीं सर, माइनिंग इज नॉट द राइट आंसर. माइनिंग किसमें आता है? एक्सेप्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट. ये भी हमें दिमाग में रहना चाहिए. तो वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स विद अस वेयर हम स्टार्ट करने वाले केस स्टडी. काफी कोई और बच्चे भी अगर पेंडिंग है तो वो भी हमारी क्लास ज्वाइन कर लें. Next question number 4, the occupation in which people work for others. See, if you are honest enough, you should not focus on the answer. You should focus on the question. Trust yourself, have some confidence in yourself, right? The occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as business हो नहीं सकता, profession हो नहीं सकता, none of them से पहले we should focus on employment. Yes, employment is the right answer, right? Employment is the right answer. Next one, the industries which provide support services to other industries. See how easy it is, right? The options are primary, secondary, commercial. ये कहाँ से आ गया भाई? The last one is tertiary. Of course, right answer is what? Tertiary. The right answer is tertiary. ठीक है बच्चों? आगे चले हम जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Sixth question, which one of the following cannot be classified as an objective of business? ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं बच्चों? कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं. These are the questions, guidelines to NCERT questions. So we are covering NCERT also. ठीक है? So that अब तो हम फाइनली इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं. बस एक मेन चीज बाकी है केस स्टडी, कुछ आज और कुछ कल. Then we will wind up 100% this chapter, and in this mean कि आप 100% इसे रजिस्टर में सॉल्व कर रहे हैं फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर नॉलेज एनहांसमेंट, सो दैट इफ यू हैव डन इन अ रिटन मैनर आप याद रख पाएंगे, आपके दिमाग में रहेगा बच्चों, राइट. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, which of the following cannot be classified as an objective of business? You have option investment, productivity, innovation, profit earning. See, if you are doing business, profit earning होगा ही होगा, इनोवेशन करना जरूरी है, नहीं तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा. प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड काम चल रहा है, ठीक है ना. प्रोडक्टिविटी मीन्स एक अच्छे मैनर से, प्रोडक्टिव मैनर में काम चल रहा है. मतलब एक होता है अनप्रोडक्टिव काम, वहाँ पे आप काम कर ही नहीं रहे. अनप्रोडक्टिव मीन्स कोई लेबर ओरिएंटेड, पूरा लेबर वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वो भी ऑफकोर्स बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है. बट इन्वेस्टमेंट कहाँ से मेन ऑब्जेक्टिव हो गया? वो तो ठीक है, अगर आप पैसा कमा रहे बहुत सारा तो उसमें से कुछ मनी आप क्या करते हैं, रेवेन्यू में से इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, प्रॉपर्टी में. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट. बट दिस इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं. ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाओ, सोशल सर्विस करो, वो हमने पढ़ा भी था. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव,
इकोनॉमिक के हिसाब से भी, सोसाइटी के हिसाब से सोशल भी पढ़ा था, और हिंदी ह्यूमन बीइंग के हिसाब से इंडिविजुअल भी पढ़ा था, एम्प्लॉयज के हिसाब से, राइट। चलिए मूविंग फर्दर, business risk is not likely to arise. Business risk is not likely to arise. देखिए कंफ्यूजेबल लैंग्वेज दे रखी है इन्होंने, क्या कहना चाह रहे हैं? बिजनेस risk is not likely to arise due to, business risk किस वजह से नहीं हो सकता? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी से हो सकता है आपका, एम्प्लॉय के डिसऑनेस्टी से हो सकता है, पावर फेलियर हो गया हो सकता है, ना सपोर्ट गुड मैनेजमेंट, या गुड मैनेजमेंट से बिजनेस रिस्क होगा? नहीं सर, अच्छे मैनेजमेंट से तो अच्छा सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। वेरी सिंपल, राइट बच्चे? तो गुड मैनेजमेंट इज द रॉन्ग आंसर, इसकी वजह से कभी रिस्क फेस नहीं होता, राइट। तो चलिए इसके बाद वेलकम यू ऑल टू द केस स्टडी। ठीक है बच्चों, केस स्टडीज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी शुड डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, केस स्टडीज ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो देखिए केस स्टडीज कितनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज होती है जो आपके 12th में भी सीबीएसई बोर्ड का मेन करिकुलम है, और अगर एक बच्चे ने अच्छी वाइड नॉलेज दी है तो ही कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बिजनेस, राइट। चलिए देखिए, सचिन फादर हैड गिफ्टेड हिम हिज ओल्ड लैपटॉप। सचिन के फादर ने क्या किया बच्चों? तो सचिन के फादर ने पुराना लैपटॉप अपने बेटे को गिफ्ट किया, ठीक है। सचिन wanted a latest laptop with some advanced features on his coming birthday. सचिन क्या चाह रहा है? उसको तो लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए with some advanced feature। ये क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको? As the old laptop was not of needed by his father, he decided to sell the laptop on OLX, right बच्चों, and then purchase a new one। ठीक है, अभी देखिए स्टोरी में ट्विस्ट आएगा अचानक से, राइट। यही तो मजेदार चीज है, जितना केस स्टडीज पढ़ता है बच्चा उतना उसको मजा आता है। एंड आई कैन गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स, दिस इज माय कमिटमेंट, ओके। वो ऑलरेडी मैं अरेंज कर चुका हूँ, बट अब हमें चैप्टर के साथ साथ केस स्टडीज पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो बिजनेस स्टडीज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना है सीबीएसई बोर्ड का। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सचिन सोल्ड हिज लैपटॉप एंड वाज वेरी डिलाइटेड टू मेक हिज फर्स्ट बिजनेस डील। बहुत अच्छा लगा, उसने अपना पहला लैपटॉप किससे सेल कर दिया बच्चों? OLX पे। किससे सेल कर दिया? OLX पे। Now, while making his purchase a new laptop from Flipkart.com, he read a notice about some relief material being collected for JM Jammu and Kashmir flood relief work। देखिए, उसको कुछ रिलीफ मटेरियल मिला, ठीक है, कि भाई वहां पे जो फ्लड आया है उसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, राइट। He informed his friends about the relief material. They formed a team of 5 students and decided to collect the material from the neighborhood and stand for relief work। कि भाई हम भी अपनी तरफ से कुछ रिलीफ वर्क करें, वहां की जनता के लिए कुछ करें। कैन नाउ क्वेश्चन स्टार्ट आ रहा है, देखिए क्वेश्चन। नाउ वी आर आस्किंग द मेन क्वेश्चन, कैन द ट्रांजैक्शन बाय सचिन बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन? व्हाई और व्हाई नॉट? व्हाई और व्हाई नॉट? स्टेट द रिलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस। देखिए क्वेश्चन का अंदाज देखिए, हम आपसे एक तो ये पूछ रहे हैं क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, और फीचर ऑफ बिजनेस बताइए, रेलेवेंट फीचर होगी, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए अच्छे से। इट मीन्स आपको पहले तो यस या नो में जवाब देना है, और साथ साथ बिजनेस के भले आप सारे फीचर एक्सप्लेन कर दीजिए। दिस क्वेश्चन गिव्स यू 6 मार्क्स, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो फीचर ऑफ बिजनेस भी बता दीजिए, साथ साथ यस और नो में एक्सप्लेन भी कर दीजिए। क्यों नहीं है ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन? बिकॉज ये कोई रेगुलर नेचर की एक्टिविटी नहीं है, इसने केवल एक वन टाइम ये वर्क किया। और बिजनेस की बात करें तो रेगुलर नेचर का होना चाहिए। याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव के अंदर, फीचर्स के अंदर प्रॉफिट अर्निंग भी होना चाहिए, रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ बेनिफिट, और सारे फीचर्स आते हैं बच्चे। सोचिए, प्रॉफिट इज नॉट द मेन फीचर ऑफ बिजनेस, बहुत सारे फीचर्स है, याद कीजिए आप क्या है फीचर। सोचिए, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के, हमने डिस्कस किए थे क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, या तो और साथ साथ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस है, प्रॉफिट अर्निंग है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी रहता है, प्रोडक्शन भी होता है, एक्सचेंज भी होता है। सोचिए, यहाँ पे उसने एक बार अपना लैपटॉप सेल किया,
क्या वो ये रेगुलर नेचर में वर्क करने वाला है बच्चों? नहीं। सो द आंसर इज ऑलरेडी क्लियरली मेंशन, नो, आज रेगुलेटरी इज मिसिंग, मेन ऑब्जेक्टिव से मिसिंग है भाई, उसका ये रेगुलर नेचर का वर्क ही नहीं है ना, उसने कुछ प्रोडक्शन किया, बस उसने अपना पुराना गुड्स सेल आउट किया है। राइट बच्चों? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज हैंड इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, चलो जल्दी से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है? और ये और भी इंटरेस्टिंग है, देखो मजा आएगा धीरे धीरे। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन द ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? दिस रीजन टू सपोर्ट योर आंसर मीन्स व्हाट? क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? देखिए कि कह रहे कि अब केवल पैसा ही कमाना बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य नहीं रह गया है। मीन्स व्हाट? अब जिस प्रकार केवल ईटिंग खाना ही जीवन का एक मेन उद्देश्य नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? सोचिए कई सारी चीजें हैं बच्चों। अब देखिए आंसर क्या लिखा है, फिर आप अग्री करेंगे। यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, लाइक ईटिंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, same way profit is also essential and a must for survival of any business, but a person cannot survive for a long time and cannot lead a healthy life only by eating। क्या केवल खाना खा खा के आप परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ? नहीं सर। a human being has to perform other activities also। means what? एक ह्यूमन बीइंग को सर कई सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड उसको अपना जिम का, एक्सरसाइज का बहुत सारे शेड्यूलिंग करने पड़ते हैं, बिकॉज खाना इज नॉट द मेन टास्क, उसके साथ और भी कई सारी चीजें जुड़ी है। इट मीन्स व्हाट? सर आप इसे बिजनेस से कैसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि केवल पैसा कमाना ही मेन एक उद्देश्य नहीं रह गया है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आइए डिस्कस करते हैं बच्चों आगे। आइए क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए जस्ट फोकस। सच है जैसे बिजनेस एक इंसान की बात चल रही है, सच है इंसान के साथ और क्या क्या चीजें हैं? सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो बहुत से बच्चे सच में ऑनेस्टली से कुछ देश के लिए परफॉर्म करते हैं अपने स्कूल्स में, राइट बेटा? सिमिलरली इन अ बिजनेस with the sole motive of earning profit cannot survive for a long time। अब सोचिए बच्चों, एक बात बताइए कि केवल पैसा कमाना ही, इसलिए एक ऐसा कोई बिजनेस बताए जहां पे वो सब पैसे का ही सोचते हैं। अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो वो लॉन्ग टर्म को सर्वाइव नहीं कर पाएगा बच्चों। वाई? क्योंकि सर केवल मनी ही सब कुछ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी और भी चीजें, जैसे कि टू कैप्चर अ बिग शेयर इन मार्केट and to create the goodwill, businessman must have some social and individual objective along with economic objective of earning profit। The common social and individual objective of business are, आपको पता है ऑलरेडी, सोशल ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े थे बच्चों, याद कीजिए, कोरिलेट कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है जहां आपको पूरा वाइड नॉलेज मिलेगा कि केवल पैसा कमाना ही क्या मेन उद्देश्य होना चाहिए बिजनेस का, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं सर, आंसर रॉन्ग है सर। पैसे कमाने के साथ साथ कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। देखिए ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अजीम प्रेम की जो विप्रो के ऑनर है बच्चों, इनका अलग से स्कूल चलता है, पता है आपको? टाटा का अलग से स्कूल चलता है, और उसमें ये चार्ज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फीस। ये सोशल एक्टिविटीज में भी एक्सपर्ट है, कर रहे हैं कुछ। सलमान खान का भी यही सुना, पता नहीं व्हाट इज द टास्क बीइंग ह्यूमन इज द ब्रांड, ठीक है? और उसके थ्रू जितना भी वो सेल करता है पूरे इंडिया में, क्लोथिंग सेक्टर के अंदर बीइंग ह्यूमन बहुत अच्छा एक ब्रांड है बच्चों। तुमने कहते यही है, बट इज फैक्ट, वो तो भगवान जाने, लेकिन फैक्ट यही सुना है कि जितना भी इनकम सलमान खान के इस ब्रांड से होता है, उसका 6% चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाता है, छोटे बच्चों की उसके एजुकेशन में जाता है, राइट? क्योंकि केवल पैसा कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाना देखिए क्वेश्चन में। Again, I'm telling you, if you want the printout of this question, or sorry, soft copy, I can send you personally। ठीक है बच्चों? और वैसे तो आपके पास वो करेंट हो जानी चाहिए, और यू कैन परचेज ऑनलाइन ऑल्सो @315 अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, राइट बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
Why is business considered as the backbone of industry and other business activities? आखिर कॉमर्स बैकबोन के रूप में क्यों है? क्योंकि सर कॉमर्स के थ्रू कितना कुछ होता है आप देखिए. कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द इन्वेस्ट ऑफ पर्सन. यानी कि अगर मीडिएटर ना हो, कॉमर्स ना हो, होलसेलर्स रिटेलर्स ना हो, तो प्रोड्यूसर का गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे? नेक्स्ट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंडर्स ऑफ स्लेव. यानी कि ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी लोकेशन तक गुड्स कैसे पहुंचेगा? टाइम, सोचिए, टाइम इज कनेक्टेड विद वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग सोचिए, ठीक है. वेयर हाउसिंग में आप क्या करते हैं? सामान स्टोर करके रखते हैं. जैसे मार्केट में डिमांड आती है बच्चों, जैसी मार्केट में डिमांड आती है, दुकानों तक गुड्स पहुंच जाता है, डिलीवरी हो जाता है. सोचिए, ठीक है. जैसे कि आप अमूल, सरल, ये अपने प्रोडक्ट को अमूल स्पेशली क्या करके रखता है? स्टोर करके रखेगा, बना के ये तो ये ताजा ताजा आपके घरों में सेल आउट कर रहा है. आइसक्रीम्स है, पनीर है, दे हैव सो मेनी ब्रांड्स बच्चों, डिपेंडिंग ऑन दी लाइफ, कितना लाइफ है उसका. राइट बच्चों, पनीर ये स्पेशली टॉक अबाउट आइसक्रीम्स एंड ऑल, ठीक है. कोल्ड ड्रिंक्स, दूध एंड ऑर्गन का मिल्क शेक आता है. अब सोचिए प्रैक्टिकली, क्या ये इमीडिएट आपको पहुंचा रहे हैं? नहीं सर. ये कैसे, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहता है कि अमूल कंपनी ने अपना प्रोडक्शन किया आइसक्रीम का, उसी वेयर हाउस में रख दिया, ठीक है. अराउंड 6 मंथ की तो वैलिडिटी रहती है बच्चों, एक्सपायरी डेट, राइट. अब क्या हुआ? जैसे ही मार्केट में डिमांड आई, बीकानेर लोकेशन में, राजस्थान में, पंजाब में, पीछे से स्टॉक सीधा डिलीवर करा दिया बच्चों. और जब तक डिलीवर नहीं करा तब तक वो कहाँ पे पड़ा रहा? वेयर हाउसिंग में. यानी कि जो टाइम है इट इज कनेक्टेड विद वेयर हाउसिंग. व्हाट अबाउट द एक्सचेंज? यानी कि कॉमर्स अगर नहीं होता, कॉमर्स बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री क्यों माना जाता है बच्चों? बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग द इंटरेस्ट ऑफ एक्सचेंज. अगर पैसे की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से मिलेगा? तो बैंक से मिलेगा. वेरी सिंपल. तो बैंक ना हो तो एक्सचेंज कैसे होगा? आप सोचिए, आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे? आपने मुंबई से गुड्स मंगाया, उन्होंने आपको सेल किया, अब आप उनको पेमेंट तो चेक से दे देना बच्चों. तो कौन चाहिए मीडिएटर इसके लिए? बैंक चाहिए. बिकॉज बैंक विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज. रिस्क आपको ऑलरेडी पता है, इंश्योरेंस के थ्रू आप अपना रिस्क को कम कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, राइट बच्चों. देयर नॉलेज वाया एडवर्टीजमेंट, लेकिन ये टेबल लिखा एक्सप्लेनेशन ऑन पेज नंबर 30 एंड 31. तो ये तो सिर्फ केस स्टडी जैसा नहीं था क्वेश्चन, इट वॉज ए स्मूथ क्वेश्चन. आगे चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको देखिए. आइए क्वेश्चन नंबर 4. What is question number 4 explain to you? आइए जल्दी चेक कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. Business is an institution organized and operated to provide good service under the incentive of private gain. Discuss. अब आपको क्लियर एग्जाम्पल पे आ गए, सॉल्यूशन पे आ गए. प्लीज सॉल्यूशन पे फोकस मत कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए बच्चों. क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? बिजनेस इज एन institution organized and operated to provide goods and services. क्या है बिजनेस? इंस्टीट्यूशन है. क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? सर एक ही रीजन है ना, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन. इट मीन्स व्हाट? आंसर अब आप देखिए, आंसर क्या लिखा है. Yes, it is right to call business as an institution to provide goods and services for earning profit because of certain characteristics of business. यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम बिजनेस ऑपरेट क्यों कर रहे हैं? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन क्या है हमारा आखिर टारगेट? प्राइवेट गेन. मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हमारा ही हो रहा है ना बच्चे. एक बात बताइए, चलिए प्रैक्टिकल सोचिए. आप बिजनेसमैन है एंड आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस. तो आप अकाउंट से भी सुनते आए. अब अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मार्केट में बेस्ट मैनर में, तो आप फिर कर क्यों रहे हैं? सर क्योंकि मेन तो मकसद एक ही है सर, पैसा कमाना. तो यानी कि पैसे कमाना है तो फिर आपको ऑपरेट करना पड़ेगा बिजनेस अच्छे मैनर में. यानी कि यस, इट इज राइट टू कॉल बिजनेस एज एन इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा. किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा? ऑफकोर्स सोसाइटी को. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, हमें गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना ही पड़ेगा. और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए बच्चों, वेरी सिंपल. ठीक है. कई बार आपको ऐसा लगेगा बच्चों क्वेश्चन में कि कंफ्यूजन हो रहा है,
बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और क्वेश्चन पेपर में कभी भी ऐसा कुछ कंफ्यूज अगर नहीं देता, क्वेश्चन पेपर में आपको क्लियर मैसेज देगा कि आप अपना जजमेंट दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज अ बिजनेसमैन विलिंगली अंडरटेक बिजनेस रिस्क? एक बिजनेसमैन विलिंगली मतलब दिल से क्यों लेता है बिजनेस रिस्क? अरे भाई सिंपल सी बात है सर, देखिए सेकंड लाइन में क्लियर कट बेनिफिट, सीधा सीधा आंसर लिखा, फॉर गेटिंग द रिवॉर्ड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा? रिस्क इज द प्राइस पेड फॉर गेटिंग प्रॉफिट। बच्चों, anytime if you want to take a screenshot, that is also possible. You can take a screenshot also, right? The businessman willingly bears risk because it brings profit, which is the main motive of every business. The higher the risk, the more is the profit. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ प्रैक्टिकली, ओपनली डिक्लेरेशन के साथ। मैंने पहले भी इसकी अच्छी चीजें डिस्कस की है। सी राइट नाउ व्हाट मैनी स्कूल्स आर डूइंग, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ प्लीज, है ना, आप सब बच्चे ऐसे थे हमारे, बट मैनी स्कूल्स आर डूइंग बस नॉर्मल तरीके से अपनी क्लासेज एंड ऑल लेना, बस ठीक है, टीचर्स को भी खुश नहीं करना। बट इफ आई टॉक अबाउट माई स्कूल, दैट शुड मेक लीव, बट माई स्कूल, आवर स्कूल, योर स्कूल इज डूइंग। बच्चों सोचिए, एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सब टीचर्स को बेनिफिट दे रहे हैं, भले उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, totally what the director of LPS is doing, taking risk, taking risk by providing maximum satisfaction to his own employees, because we employees, we teachers have the manpower of the school. What do you mean by manpower? Human beings को आप manpower भी बोल सकते हैं, अपने employees को manpower, जिसके थ्रू आपकी organization successful हो सकती है। सोचिए, every teacher who is teaching in this campus right now, he is happy. You know why? Because sir has promised, whatever happens, whether parents pay or not fee, we will pay you. So that employees dissatisfied नहीं हो। बच्चों देखिए, जितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं उससे बेनिफिट क्या होगा? एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर नहीं जाएंगे। कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट यूज योर दिमाग, माइंड लगाओ अपना। जनरली दी प्रोजेक्ट with which more risks are involved generate more profits as compared to less risky projects. आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होगा कि सर ये कोर्स करना चाह रहे हैं, रिस्क है, लेकिन सर उसके लिए ना सर 20 लाख रुपीज लगेंगे, एमबीए फ्रॉम अमेरिका और whatever, wherever, right? और आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा रिस्क है, बट आप इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा फंड्स का शॉर्टेज है, अरे बैंक्स एंड ऑल दे विल प्रोवाइड यू लोन फैसिलिटी, नो इश्यूज एट ऑल। टेक रिस्क इन योर लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो सकते हैं, रिस्क ऐसा नहीं कि चलिए आज जाकर कुछ ऐसा कुछ काम कर लिया, जैसा रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी तो मिलेगा नहीं। प्लीज चेक आउट प्रॉपरली कि क्या रिस्क लेना चाहिए, क्या वो फिजिबल है, क्या हम उसके लिए कैपेबल हैं। अगर हैं देन यस यू शुड टेक रिस्क, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड रिटर्न। देखिए ये केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया बच्चों, कि आपकी बुक में डायरेक्टली कहाँ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपसे जजमेंटल पूछा कि क्या एक बिजनेसमैन को रिस्क लेना चाहिए? यस सर, बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज आज वी हैव डिस्कस हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड रिटर्न। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, नेम द सर्विस व्हिच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग केसेस। यहाँ आपको दिमाग लगाना है जल्दी से। यू हैव 1 मिनट टाइम विद यू ऑल। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स? देखिए जल्दी से, 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब आपको इसके आंसर सोचने हैं, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए बच्चे। यस, मन में सोचिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए। नेम दी सर्विस व्हिच इज रिलेटेड टू दी फॉलोइंग केसेस। सोचिए जल्दी से। Finally, you all have given the answer wonderfully, beta. First start with the service which helps in removing hindrance of knowledge. The answer was advertising. The next, exchange की hindrance को कौन दूर करता है? Banking. Place की hindrance को कौन दूर करता है? Transport. Time की hindrance को कौन दूर करता है? Warehousing. और risk से protection कौन देता है? Insurance. Very good, very good, very good answers given by you all. चलिए जल्दी से आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं ताकि मजा आए आपकी क्लास में। ठीक है, देखिए 7th नंबर क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट दे आर आस्किंग यू बच्चों, बिजनेस इन्वॉल्व ओनली सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। ये क्या कहना चाह रहे हैं? बिजनेस इन्वॉल्व
only sale and exchange of goods for profit. क्या बिजनेस में केवल यही एक ऑब्जेक्टिव है? क्या बिजनेस में केवल इसी चीज का इन्वॉल्वमेंट है? नो सर, दे आर आस्किंग डू यू एग्री विद दिस? नो, द आंसर इज नो, गलत है ये। राइट स्टूडेंट, ये गलत है। इज इट ओके? हाँ जी बच्चों, यस, they are saying business involves only sale and exchange of goods for profit. क्या केवल प्रॉफिट के लिए हम लोग कर रहे हैं? No sir, not at all. Why? Because business does not involve only sale and exchange of goods and services for profit. The sale, public purchase or exchange must be on a regular basis. एक तो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए और बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं डेफिनेटली। लाइक इफ अ बिजनेस इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर एट प्रॉफिट, तो उसने तो प्रॉफिट पर ही बेचा, बट क्या वो बिजनेस है? क्या ये बिजनेस को कंस्टिट्यूट करेगा? नॉट एट ऑल, बिकॉज फिर ये रेगुलर बेसिस पर नहीं। तो केवल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना प्रॉफिट पर नहीं सर, नहीं। एक तो ये रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, सोसाइटी के लिए डिजायर प्रोडक्ट क्या बना है वो सब भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आप इन सब टॉप को वापस से रिसर्च कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्ट क्रिएट हो अबाउट दिस सब्जेक्ट, अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर भुवन, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर भुवन is a chartered accountant in a multinational company. He gets rupees 85,000 per month as his salary. On weekends, Mr. Bhavan goes to nearby village and teaches some children. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे कुछ बच्चों का दिमाग भी लग रहा है। He does not charge anything from them. He does it out of sympathy and concern for poor children. This gives him mental and psychological satisfaction. और ऐसा कई लोग करते भी हैं बच्चों। Number one, working as CA in a MNC refers to which type of human activity? Answer is already given, but use your mind. So this is economic activity, right? Next, teaching students in slums is which type of human activity? Non-economic, because he is not charging money from those students. He is charging, no, not a single rupee. वो free of cost provide कर रहा है। Next, आइडेंटिफाई दी वैल्यूज। बच्चों अकाउंट्स में भी और बिजनेस में भी पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अब अकाउंट्स में उसका सिस्टम खत्म हो चुका है, बट बिजनेस में यू कैन गेट वैल्यू बेस्ड, मतलब भावनाओं से रिलेटेड आंसर देना है आपको, यहाँ पर अपने दिमाग से आंसर देना है, राइट? क्या वैल्यू फॉलो करे भुवन? तो वेरी इजी सर, वैल्यू ऑफ हेल्पिंग पुअर। और एक और वर्ड बोल सकते हैं आप, सिंपैथी टुवर्ड्स पुअर चिल्ड्रन, राइट बच्चों? तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर प्रोसीड करते हैं। मिस्टर अश्विन वर्मा एंड मिस्टर निखिल सेन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस, राइट बच्चों? एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ मार्केटिंग ready-made garments with via written and duly registered agreement। देखिए इन दो इंसानों ने क्या किया बच्चों, दो ह्यूमन बींग्स, दो मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर निखिल, इन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का? कि मार्केटिंग करेंगे। क्या करेंगे? मार्केटिंग। किसकी मार्केटिंग करेंगे बच्चों? रेडीमेड गारमेंट्स की। ठीक है, और इन्होंने रिटर्न में अग्रीमेंट भी बनाया। 12th में तो पूरा प्रैक्टिकल आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, they suffer heavy losses due to fluctuating demand and out fashion design। बच्चों क्या हुआ? इनको बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग डिमांड एंड आउट फैशन डिजाइन। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिस्क faced by this firm in the given case, pure or speculative? Sir, you tell us, sir, what is the difference between pure and speculative? Pure तो डिक्लेयर है, होना ही होना है, और स्पेकुलेटिव जिसमें मे बी और मे नॉट बी। अब जो इन्होंने सेक्टर पकड़ा है बच्चों रेडीमेड गारमेंट्स का, ऑफकोर्स वो स्पेकुलेटिव ही है। तब क्या चेंजेस आ गए, राइट? तब कुछ नए चेंज होते रहते हैं बच्चों, नई नई डिमांड्स आती रहती है कस्टमर की, हमें ऐसा डिजाइन का प्रोडक्ट चाहिए, हमें ऐसे डिजाइन का क्लोथ चाहिए, राइट? तो ये कौन सा रिस्क हुआ? स्पेकुलेटिव, सट्टे से रिलेटेड जिसे आप बोलते हैं, राइट?
क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का ये बच्चों, as we have only one last minute left. Differentiate between Anusha running a bakery and Manusha cooking food at home. Of course, पहला किसकी बात चल रही है? पहला रनिंग अ बेकरी और दूसरी घर पे फूड बना रही है. सी द डिफरेंस. जो सेकंड वन है ये नॉन इकोनॉमिक है, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट वन कौन सा? इकोनॉमिक. यानी कि आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंशिएट करना है. राइट. नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग. ऑफ कोर्स दोनों में डिफरेंस है, याद कीजिए. एक है जेनेटिक वाला और दूसरा है माइनिंग वाला. एक्सट्रैक्टिव के अंदर आता है और जेनेटिक पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग किसके अंदर आता है? जेनेटिक के अंदर आता है. याद कीजिए हमने स्टार्टिंग में ये स्टडी किया था. राइट. सो विद दिस नोट we have to finish our class because time is no more with us for today's session of business studies. So please revise these questions at home. Please do these questions in your written mode also, in your register also. This is my personal suggestion to all. ठीक है बच्चों, bye bye, enjoy.